Psalm 73. Read for me 17th verse. एक बार हिंदी में. Thank you, Holy Ghost. Psalm 73 verse 17. किंतु जब मैं परमेश्वर के पवित्र स्थान में गया, तब मैंने दुर्जनों का अंत समझ लिया. ओके, एक बार इंग्लिश में. ओके, इंग्लिश में फर्स्ट वर्ड है until I went into the sanctuary. हालेलुया. जब मैं परमेश्वर के भवन में गया, बाहर नहीं समझ में आया मुझे. बाहर देखूंगा, बोला गलत काम करते हैं फिर भी आशीषित जीवन जीते हैं. अगर साम्स को टाइम नहीं है पूरा पढ़ने के लिए मुझे, राइट, सामने से अगर पढ़ेंगे, बोला आई हैव वेस्टेड माई लाइफ इन बीइंग क्लियर बिफोर गॉड. मैं अपने आप को शुद्ध रखने में मेरा जीवन को व्यर्थ किया मैंने परमेश्वर की नजर में. वो देखो कुछ भी करते हैं फिर भी उनको सब कुछ मिलता है. पता नहीं क्यों बोल रहा हूं, लेकिन अगर आते आते किसी को देखा तो बोला ये अच्छे हम, लगता है. Do not be jealous when the wicked prospers. हालेलुया. क्योंकि तुमको कब समझ में आएगा कि वो सब कुछ करते फिर भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता. हम एक बार एक गलती करें तो बहुत कुछ होता है हमारी जिंदगी, है ना, ऐसा हमको लगता है. लेकिन इसका उत्तर ये देता है दाऊद, कहता है until I went into the sanctuary. जब तक मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊं, उसके भवन में ना जाऊं, मुझे उनका अंत समझ में नहीं आएगा. मैं सोचा घर में बुलाएगा, मेरा अंत समझाएगा, मेरे बारे में बताएगा, तू कितना आशीषित है, तेरे लिए क्या कर रहा. नहीं, यहां बुला के हमको उनका अंत समझाता है. हालेलुया, आमेन. क्या बोलता है उनको? हाँ, then understood I their end. उनका अंत कैसे होगा मैं पहचान लिया. कैसे होगा पता है? नेक्स्ट वर्स, रीड द नेक्स्ट वर्स. हाँ, श्योरली. हाँ, उनको कहाँ पे खड़ा किया पता है? कब फिसलते नहीं पता, लेकिन तुम्हें तो चट्टान पे खड़ा किया है. हालेलुया. तुमको फिसलने का चांस ही नहीं देगा, लेकिन उनको कब फिसलते नहीं मालूम, नामो निशान नहीं रहेगा. आमीन. आपको जो लगता है ये बड़ा नाम बनाए, वो किया, ये किया, नहीं. आंख झपकने से पहले सब कुछ खत्म हो जाएगा. हालेलुया. I have seen it. I have seen it with my eyes. I don't know if your heart is questioning God. अगर परमेश्वर के लिए आपके मन में प्रश्न आ रहा है, परमेश्वर मैं इतना अच्छा जीवन जी रहा हूँ, शुद्ध जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ, तुझे संतुष्टि हो ऐसे जीवन, a life that is pleasing to you I am living, Lord, but yet I am facing all these things. But see them, they are doing all the things against you, but yet they are prospering. Why? If the question is inside you this morning, God is telling, I have brought you here to show you their end. Hallelujah. I will never allow you for your foot to be slipped, but they are put on a slippery ground. They will be washed away, never to be seen again. Hallelujah. Amen. वो ऐसे उड़ जाएंगे, उसका स्थान
कोई था यहाँ पे भी पता नहीं चलेगा। Hallelujah. Amen. But God has blessed us and He says, you who have been walking in my ways, know for sure I have set you on a solid rock. Receive that, somebody. Your life is set on a solid rock. It will not be shaken by any storm, nor any wind, nor any circumstance. Nothing can shake you. You have been set on a solid rock. And that rock is my Jesus. Worship you, Father. Can we close our eyes 1 minute? Father, in the mighty name of Jesus, if the enemy is trying to make your children stumble in their faith, in their hope, today remind them once again that you have set them on the solid rock. You have set them on the rock that cannot be shaken. You have set their feet on the rock that cannot be shaken. Storms, winds, floods, anything may come against them, O Lord. Let them know, because their feet have been set. Their feet have been set. I'm repeating it again. Your feet has been set there. It cannot be shaken. Your faith will not be moved. Your love will not lessen. And your hope in the God whom you have believed, He will never make you ashamed. I declare it upon your children, oh my God. I declare it upon your children. Receive that in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. I thank you. I thank you. Holy Spirit, I thank you once again. Keep them in your love, O Master. As your word declares, for a hope will not make us ashamed, because the love of God has been shed abroad in our hearts by the Holy Spirit. And we thank you. Your love will keep us, O Father God. I thank you and I praise you. Give you glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you. Okay. I'll begin with the quote. Lord, those who are hungry, give them the bread. And those who have the bread, Lord, give them the hunger to share the bread. Hallelujah. Matthew 6:11. Give us this day our daily bread. Amen. So coming into the series जो हम लोग पढ़ रहे, सीख रहे, जो परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि हम सिर्फ खाने के लिए नहीं आ रहे, खाना बनने के लिए आ रहे हैं। आमेन, हालेलुया। हम रोटी खाने के लिए नहीं आ रहे, किसी और के लिए रोटी बनने की आस लेके आ रहे हैं हम लोग। आमेन, राइट। सो मैं रिपीट नहीं करूंगा, आई विल गो डायरेक्टली। सो ब्रेड तैयार हो गया। सो पिछली बार मैं बोल रहा था, बी रेडी टू बी सर्व्ड। आमेन, बी रेडी टू बी सर्व्ड।
क्योंकि जैसे जीसस ने कहा, आई हैव नॉट कम टू बी सर्व्ड बट टू सर्व। सो हमको भी यीशु मसीह को कहना है, परमेश्वर मुझे ले और किसी के लिए परोस दे। आमीन। मुझे ले और किसी और के लिए परोस दे। Why do you come to church on Sunday? To serve God. Amen. ध्यान से सुनो, we come on the day of worship to serve God. The better you serve God, the next whole coming week, He will serve you for somebody else. Hallelujah. ये वीक कुछ नहीं हुआ, क्यों? Because Sunday you did not serve God. Hallelujah. Amen. You want yourself to be served the whole week. पूरा हफ्ता आप किसी के आशीष के कारण बनना चाहते हो, यहाँ पे आके परमेश्वर को आशीषित कहो। Come bless the Lord in the house of the Lord. He will make you a blessing in the coming week for somebody else. I don't know, just come on, allow me to flow. Thank you, Jesus. Right? तो मुझे परोसना है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर से, मुझे किसी और के लिए परोस दे परमेश्वर। मुझे सिर्फ रोटी नहीं चाहिए, मुझे रोटी बना, ताकि मैं किसी और के भूख मिटा सकूं, भूख मिटने के कारण मैं बन सकूं। जो भी भूख मुझे दिखता है लोगों में, मैं लास्ट टाइम बोल रहा, यू गो आउटसाइड यू विल फाइंड हंगर। हालेलुया। यू विल फाइंड हंगर ऑफ मेनी थिंग। बहुत सारी चीजें हैं जो दुनिया के लोग, कुछ लोग बोलते नहीं, कुछ लोग बोलते हैं, बट हम वो लोग होना चाहिए जो किसी की उस भूख को पहचान सके। बाहर जो दिखता है वो नहीं, हमको ऐसे लोग बनना है, परमेश्वर के ऐसे लोग बनना है, परमेश्वर की वो दृष्टि लेके उनके पास जाना है कि मुझे उनके भूख को पहचान सके। बाहर सब बहुत अच्छा है, लेकिन एक आधा घंटा बैठ के उनके साथ दिल से बात कीजिए। हालेलुया। Let them know that you are a person with whom they can share. तुम्हारे साथ बांट सकता हूं मैं, ये कॉन्फिडेंस उनमें आने दो। हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूं, ओके, नॉट इन ऑल दीज थिंग्स। एक बात तो हर एक व्यक्ति जो मुझसे कनेक्टेड है उसको पता होना चाहिए, विश्वासी अविश्वासी कोई भी हो, राइट? तुम्हारा कटिंग वाला हो, दूध वाला हो, बाजी वाला हो, कोई भी हो, उसको एक बात आपके बारे में पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरे लिए प्रार्थना कर सकता है। हालेलुया। जब अगर इसको मैं समझूंगा, ये आइडेंटिटी मेरी बन जाएगी ना, परमेश्वर बोलता है नाउ आई कैन यूज यू। हालेलुया। जब हम कुछ बोलना ही नहीं चाहते तो उनको कैसे पता चलेगा कि मैं तेरे लिए प्रार्थना कर सकता हूं? Have you asked anybody, can I pray for you? तुम्हारे ऑटो चलाने वाला है, रास्ता बहुत दूर है, पूछ सकते हैं कुछ है जो मैं तेरे लिए प्रार्थना कर सकता हूं? नहीं पास्टर, अपने आप को नहीं दिखा, छुपा के रखना, छुपा के रखने के लिए नहीं बुलाया, तुझे उजियाला बनाया, तुझे लाइट बनाया। हालेलुया। Amen. Let people know that you can be served for them. Hallelujah. वो बोल्डनेस मुझ में आना चाहिए, वो क्या बोलते हैं, एक कॉन्फिडेंस मुझ में आना चाहिए कि आई कैन। सिंपल सा क्वेश्चन, डोंट आस्क बहुत सारी चीजें मत पूछो, एक सिंपल सा क्वेश्चन, कैन आई प्रे फॉर टुनाइट? आई टेल यू, गॉड विल ओपन अप एवरीथिंग। बात करके देखो, एक बार पूछ के देखो, क्योंकि पहचान जाते हैं हम। कभी पूछो, चेहरा थोड़ा नीचे, क्या हो गया, प्रार्थना कर सकता हूँ तेरे? मुझे प्रॉब्लम नहीं जानना है तेरे, लेकिन तेरे लिए क्या प्रार्थना कर सकता हूँ?
हालेलुया। मैं तो कहता हूँ जो मेडिकल फील्ड में ना, यू हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, बिंदास कर सकते हो। ठीक है, अब बाकी चीजें चल रही है, बट फिर भी हम रुकने वाले नहीं। हालेलुया। Just because people don't like it, no, we are still continuing to pray and to serve the people. Hallelujah. Amen. So पिछली बार बता रहा था, so परमेश्वर मुझे अगर किसी और के लिए परोसना है, if he has to serve me to somebody else, so there are some things that God looks at. कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर मुझ में देखना चाहता है कि तू क्या परोसा जाएगा। तेरे को रोटी तो बनाया मैंने, अभी तू रोटी है, तू रोटी बन के शोकेस में रह सकता है। मेरे राज्य में बहुत सुंदर सी रोटियां हैं, कुछ लोग खाली देख के खुश होके जाते हैं, कुछ लोग वहीं पे रहना चाहते हैं, द शो ब्रेड, दे वांट टू बी देयर। लेकिन कुछ चीजें हैं, परमेश्वर बोलता है if I want to use you, then I am seeing some things. कुछ चीजें हैं जो मैं तुझ में ढूंढूंगा, कुछ चीजें हैं जो मैं तुझसे एक्सपेक्ट करूंगा। Nothing wrong in being a showbread, right? You become the bread, वही बड़ी बात। यीशु मसीह जैसे बने, वही बड़ी बात, right? अब इस्तेमाल होना या नहीं होना वो आपके ऊपर है, और परमेश्वर बोलता है मैं उसी को इस्तेमाल करूंगा जिनमें ये चीजें मैं देखूंगा। हालेलुया। इसीलिए सब इस्तेमाल नहीं होते। मैं हमेशा, व्हाई कांट यू यूज एवरीबॉडी, सिंपल थिंग्स। मैं किसी को जबरदस्ती कॉलर पकड़ के खड़ा नहीं करूंगा, यहाँ खड़ा रहे, वचन बोल, वो तुम्हारे मन में आना चाहिए। यू हैव टू वॉलंटियर इनफ टू से आई वांट टू डू दिस गॉड, आई वांट टू डू दिस गॉड। हालेलुया। गलत मत समझो या फिर उसको उल्टा मत लो। हमने कितनी बार बोला, पास्टर नेक्स्ट टाइम फर्स्ट ओपनिंग प्रेयर मैं करूंगा, इंटरसेशन प्रेयर मैं करूंगा, क्लोजिंग प्रेयर मैं करूंगा। आप 10 बार निकाल के डिलीट करके फिर डालते। पूछा मैं क्यों? दे आर नॉट रेडी। अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो भी नहीं बोलते, फिर वहां पर हम क्या, कुछ भी नहीं है। Come voluntarily serve God. God doesn't force you. एक बात मैंने देखा है कि परमेश्वर कभी किसी को उसकी सेवा करने के लिए नहीं बुलाता। वो बोलता है मेरी सेवा करने के लिए मैंने करोड़ों एंजल्स बना के रखे, मुझे तुम्हारी नहीं चाहिए। जब तक कि तू अपने दिल से सेवा नहीं करेगा, तुझे बुलाऊंगा भी नहीं, लेकिन तुझे प्यार जरूर करूंगा। आएगा, तुझे आशीष दे के भेजूंगा, तू नहीं कर रहा बोल के छोड़ के नहीं जाता। मैं फिर से कहता हूं, It is we who require God. God doesn't require us. हमारे बिना भी दुनिया चलाता है, हमारे बिना भी उद्धार लेके आता है, हमारे बिना भी रिवाइवल लेके आता है। अगर उसमें तुम एक पार्ट बनना चाहते हो, आशीषित होना चाहते हो, then offer yourself to be served. परमेश्वर परोस मुझे किसी और के लिए। Amen. Hallelujah. So कुछ चीजें देखता है परमेश्वर हमें कि जब मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूं, when I want to serve you for somebody else, then I am looking some things in you. Okay? Ready for that? किसी को बोलना, we are blessed. मैं वो भी नहीं बोलना चाहते। We are blessed. And I tell you, you are blessed. पता है क्यों?
बहुत very rarely I share some things and it becomes really a part of me being shared, right? Ready for a new journey? A new level of maturity will come into. Amen. अगर खुले हृदय से, खुले मन से इसको स्वीकार करेंगे, आई विल श्योरली टेल यू, पक्का बोलता हूं, आप तैयार होंगे परमेश्वर के इस्तेमाल के लिए। आमीन। क्या पास्टर फुल टाइम आना पड़ेगा? नहीं, मैं फुल टाइम की बात नहीं कर रहा। He will serve you where you are, to the people around you. Hallelujah. Amen. तुमको क्राउड या फिर ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो चुन के लाएगा तुम्हें किसको परोसना है। Amen. Hallelujah. क्योंकि तुम जो टेस्ट वाले हो ना, सबको पसंद नहीं आते। Hallelujah. जिस टेस्ट का मैं हूं, मैं सबको पसंद नहीं आता हूं। I agree to that. So God will give me only to people who are of my taste. Hallelujah. Amen. उसको उधर क्यों नहीं भेजा, इधर क्यों? वो तेरे टेस्ट के नहीं है। वो तुझे मुंह में डालते ही थूक देंगे तेरे। Why do you want to go to such a place? ऐसे लोगों के पास जाना चाहते हो? ऐसे लोगों को परोस नहीं, तुझे खाते ही थूक देंगे क्योंकि तुम टेस्ट नहीं है उनके। I know what you taste like, and I will take you to the people who are waiting for that taste. Thank you, Jesus. Hallelujah. चलो जाएंगे। फर्स्ट, मैंडेटरी नहीं बोलूंगा इसको, कंडीशन, और वर्ड ढूंढ रहा था। ओके, विल सी हाउ इट विल। कंडीशन भी नहीं बोलूंगा, लेकिन जो परमेश्वर ढूंढ रहा है वो, ठीक है। तो पहली बात, टर्न विथ मी टू 1 Corinthians 11th chapter। पहला क्राइटेरिया, ये कैसे, ये सारे वर्ड ना मुझे ऐसे फिक्स लगते हैं, डूज एंड डोंट्स में लगते हैं, राइट? ओके, विल सी। 1 Corinthians 11th chapter 24th verse. The first thing God is looking in people whom He will serve to somebody else. Okay, उन लोगों को देख रहा है जो परमेश्वर किसी और के लिए एक ब्लेसिंग का कारण बन सके। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 24वां वचन। हाँ हाँ, हालेलुया। हिंदी में, धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद क्या लिया था अपने हाथों में? रोटी लिया था, राइट? रोटी लिया है, बोलता है मैंने बहुत दिनों से चाहा था कि मैं तुमसे ये आखिरी खाना खाऊं। You know, that was the last time he ate with his disciples, and his heart is still waiting to once again eat with us. With great desire, I am having this last supper with you, the Passover with you. उसने रोटी ली, धन्यवाद की प्रार्थना दी। जब वो अपना रोटी अपने हाथों में पकड़ा था, बाकी सबको रोटी दिख रहा है, लेकिन उसके लिए वो खुद का शरीर था।
everyone else it was a bread, a common Passover bread. But for Jesus, it was his own body. Hallelujah. It was his own body. He took it, gave thanks to God, and he broke it, and he said, "This is my body, which will be broken for you." The first thing God says, if I have to use you, if I have to serve you, अगर मैं तुझे इस्तेमाल करना चाहता हूँ, अगर मैं तुझे किसी और के लिए परोसना चाहता हूँ, किसी और के लिए आशीष का कारण बनाना चाहता हूँ, तो पहले मैं तुम में ये देखना चाहता हूँ, क्या तुम तोड़े जाने के लिए तैयार? Are you ready to be broken? For nobody serves a whole bread. पूरी रोटी कोई नहीं परोसता. खाना है तो उसको तोड़ना पड़ेगा. So the first thing God says, जब तक तुम टूटने के लिए तैयार नहीं होगे, मैं तुम्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता. If you are not ready to be broken, then I cannot serve you to somebody else. टूटी हुई चीज कितनों को अच्छा लगता है? टूटी हुई चीज अच्छी लगती है? टूटी हुई चीज किसी को भी अच्छी लगती है. हम खुद भी टूटना नहीं चाहते. हम नहीं चाहते कोई चीज हमारे घर में टूटे. टूटी फूटी चीज नहीं चाहिए. कि परमेश्वर बोलता है, अगर मुझे तुझे इस्तेमाल करना है तो तुझे टूटना पड़ेगा. अदरवाइज फॉरगेट इट. नहीं परमेश्वर नहीं टूटे. यू आर नॉट सिनिंग, डोंट वरी. स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग मिलेगा. लेकिन अगर इस्तेमाल होना चाहते हो, किसी और के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हो, तो मुझे अपने आप को टूटना सीखना चाहिए. I have to learn to be broken. Amen. Turn with me to Psalms 51. Psalms 51, 16 and 17. Psalms 51, 16 and 17. Yeah. क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता उसको. होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता. हालेलुया. एक टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है. कंप्लीट करो. हाँ. तो टूटे और पिसे हुए मन को कभी तुच्छ नहीं जानता. You will never despise a broken heart and a contrite spirit.
क्योंकि हमको हमेशा बोला गया टूटना बलहीनता का चिन्ह है। ब्रोकननेस इज वीकनेस। हमारे इंडियन कल्चर में स्पेशली जेंट्स को बोला जाता है, ए लड़का है तो रोने का नहीं। For we have seen brokenness as weakness. God says, I want that weakness. मुझे वही बलहीनता चाहिए जो तू कहता है ना, God, this area is broken. No, I want that area. तेरा टूटना चाहिए मुझे। आशीषित को आशीषित बनाना बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। तेरे टूटने को लेके मैं आशीषित बनाऊंगा। तेरे टूटने को लेके मैं तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनाऊंगा। Hallelujah. I have to be broken. मैं पूछ रहा था परमेश्वर से, आगे बताता हूं कुछ कंडीशन से, व्हाट इट मीन्स टू बी ब्रोकन एंड व्हाई गॉड लव्स इट सो मच। व्हाई गॉड लव्स इट सो मच। कई बार ऐसे होता है ना, जो लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ मेड पीपल, मतलब जो अपनी जिंदगी खुद बना ली, बहुत तकलीफों से गुजर के, दे हैव सेट देयर लाइव्स, self-made people, and they are very confident about themselves, है ना। तो कई बार हमारे स्पिरिचुअल जीवन में भी ऐसे होता है, हाँ परमेश्वर हमने इतना सारा सहा, इतना सारा सहे के आज हम खड़े हो गए। You become somewhere proud of what you have gone through. परमेश्वर बोलता है, मुझे तुझे तोड़ना पड़ेगा। तुझे इस्तेमाल करने से पहले मुझे तुझे तोड़ना पड़ेगा। तो जब तक मैं अपने आप को उसके हाथों में तोड़ने के लिए नहीं दूंगा, बोला आई कैन नॉट सर्व यू। आमीन। क्या किया उसने? रोटी ली, धन्यवाद दिया और उसको तोड़ा और कहा, ये मेरा शरीर है, तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो आज वो वेट कर रहा है हमारे लिए। जैसा उसने दिखाया वैसे क्या हम करेंगे? क्या हम अपने आप को बोलेंगे, परमेश्वर ये रोटी ले ले तेरे हाथ में और इसको तोड़ और किसी को दे दे? व्हाट डू यू कॉल, क्या बोलते हो, जापानीज का एक आर्ट है, सब टूटे चीजों को बनाते हैं। I don't know, some word is there, pottery, right? तो टूट जाते हैं ना, उसको डिजाइन करके बहुत सुंदर बनाते हैं। ओरिजिनल से ज्यादा बिकते हो। They are 10 times costlier than the original ones because something broken was made beautiful. Hallelujah. Amen. Okay, जो भी हो, but it is beautiful. Hallelujah. कुछ लोग पूछते हैं ना, जीवन में बहुत कुछ हो रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ है, when they went through things, वो हमेशा फोन करते बोलते हैं ना, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। मैं उनको एक ही बोलता, God is breaking you. Get ready to serve him because he is going to serve you to somebody else. Hallelujah. तेरा इस्तेमाल करने के लिए तुझे तोड़ रहा है, उसको रोक मत। Hallelujah. Don't stop him from breaking you because he is breaking you to serve you to somebody else. नहीं, परमेश्वर टूट रहा है, इसको जोड़ दे, इसको जोड़ दे, इसको पूरा कर।
नहीं टूटने दे। हालेलुया। इसलिए बोला एक अलग लेवल का मैच्योरिटी आएगा। आशीष दे के इस्तेमाल करना वो बात अलग है, तोड़ के इस्तेमाल करना बहुत अलग बात है। इफ आई कैन allow God break me, तोड़ दे परमेश्वर मुझे, ताकि मैं किसी और के लिए आशीष का कारण बन सकूं। 5,000 लोगों को खाना खिलाना था, रोटी लिया, तोड़ा, नहीं दिया, पूरा रोटी नहीं दिया, रोटी भी तोड़ा, मछली भी तोड़ा। बिना तोड़े खा सकते हो, पूरा राउंड चपाती खा सकते हो, फुल पिज्जा राउंड खा सकते हो। टूटना ही है, उसे खाना है तो टूटना ही है। Amen. Hallelujah. Ready to be broken. And it's the most beautiful thing to be broken in the presence of God. ठीक है, ब्रोकननेस क्या है इसको बोलने से पहले क्या नहीं है वो बोलता हूं। रिपेंटिंग इज नॉट ब्रोकननेस, राइट? पश्चाताप करना टूटना नहीं है, ये ध्यान में रखो। कुछ लोगों को लगता है हर बार पश्चाताप करते रहेंगे टूटे, नहीं। रिपेंटेंस इज नॉट ब्रोकननेस, ब्रोकननेस विल लीड यू टू रिपेंटेंस, राइट? टूटना तुमको पश्चाताप की ओर लेके जाएगा, लेकिन पश्चाताप करना टूटना नहीं है, राइट? और दूसरी बात, सफरिंग इज नॉट ब्रोकननेस। क्या बोलते हैं? तकलीफ सहना, राइट? गॉड हैज ब्रोकन मी, आई एम सफरिंग। नहीं, दैट इज नॉट ब्रोकननेस। सफरिंग फ्रॉम एनीथिंग, राइट? फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो, सिकनेस, कौन सा भी हो, suffering is not brokenness. God broke me by giving this disease. No, that is not brokenness. मैं इतना सह रहा हूं, नहीं, that is not brokenness. गलत नहीं समझे तो डायरेक्ट बोल देता हूं, you are suffering because some foolish things you did. हमने कई बेवकूफ के काम हमने किए, इसलिए हम सफर होते। हमने संभाला नहीं, हमने गाइडेंस नहीं लिया, राइट? ऑल दिस डोंट, क्या बोलते हैं, सब कुछ परमेश्वर पे मत थोपो, राइट? आमेन। सो सफरिंग इज आल्सो नॉट ब्रोकननेस, रिपेंटेंस इज आल्सो नॉट ब्रोकननेस। आमेन, इस बात को याद रखना। सो व्हाट इज ब्रोकननेस इन द साइट ऑफ गॉड? परमेश्वर की दृष्टि में टूटना क्या होगा? पहली चीज, आइज़ाया 6, आइज़ाया 6, जल्दी से मुझे पहले वचन से पढ़ लेना, मैं बोलूंगा कब रुकना है। नहीं, हिंदी में पढ़ लो डायरेक्ट, टाइम नहीं। हाँ हाँ। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर देखा। यस, यस, yes, हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं
अशुद्ध होने वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा को देखा, अपनी आंखों से देखा है। यस, 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 ओके, बस। King Uzziah was Isaiah's uncle, right? और जब तक वो उजिया राजा था, ये बिंदास महल में जाता आता, जो चाहे बोलता, प्रोफेट की तरह काम करता, right? लेकिन जिस दिन उजिया मर गया, जिस साल उजिया मर गया, वो कहता है मैंने प्रभु को देखा, right? So what does it mean to be broken? जब उसने प्रभु को उसकी वो महिमा में देखे, उसके उस क्या बोलते हैं मैजेस्टी में देखा उसको, जब वो परमेश्वर को परमेश्वर जैसे है वैसे जब देखा, तो वो उसने क्या किया, अपने आप को उस परमेश्वर से तुलना करने लगा। वो बोला तू कौन है, तू पवित्र 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 परमेश्वर है, सेराफीम चेरुबीम तेरे आगे पीछे तुझे ढके हुए हैं, तू ऐसे पवित्र स्थान में है जहां सब कुछ पवित्र है। तो मैं क्या हूं? To be broken is to recognize what you are in comparison with God Himself. टूटना मेरे लिए वो बन जाता है कि मैं परमेश्वर की तुलना में क्या हूं, किसी और को देख के तुलना नहीं करता, किसी इंसान को देख के मैं अपनी तुलना नहीं करता। I cannot compare with any person on this earth. तो मेरे लिए टूटना क्या है? परमेश्वर, तू वो स्थान में है जो मुझे मेरा स्थान दिखाता है। स्टार्टिंग में मैं बोला, अगर दुनिया वालों का स्थान हमें देखना है तो मंदिर में आके, अगर खुद का स्थान देखना है तो एक बार बोलना, परमेश्वर मुझे तुझे देखना है, तुम कैसे नहीं टूटोगे मैं देखता हूं। आज टूट क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि तुमने कहा मैं सब कुछ हूं, मैं खुद ने बनाया, आई कैन स्टैंड, आई कैन ओवरकम, आई कैन डू दिस, मैं जीत सकता हूं। मैं कई बार तुम्हारी नम्रता के बारे में तुमको गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ, सो हम्बल आई एम। योर प्राइड ऑफ योर हम्बलनेस, वी आर प्राउड अबाउट द नॉलेज एंड द रेवलेशंस दैट वी गेट। जो परमेश्वर का वचन मुझे मिला है, जो प्रकटीकरण मुझे मिल रहा है, जो समझ मुझे मिल रही है, आई एम प्राउड ऑफ दैट। जोब के दोस्त भी ऐसे थे, बोले तेरे पे तकलीफ है, हम बोलेंगे क्यों आया, देख तूने ऐसे ऐसे किया ना इसलिए आया, अगर ऐसा जीता तो नहीं आता। तो जोब भी सोचने लगा, उनकी बातें सुन सुन के उसको भी लगने लगा शायद सही होगा। परमेश्वर ने कहा तुझे नहीं मालूम, यू थिंक यू नो व्हाई यू आर सफरिंग।
जब तुझे लगता है तुझे पता है तू क्यों तकलीफ में है, तेरा इसमें कुछ भी नहीं है, ये मेरा और शैतान का झगड़ा है। अपने आप को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है तू? नहीं, तेरा नहीं है ये। यू थिंक यू नो एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग। चल बता, समुद्र के लहरों को बाउंड्री किसने दिया? बता सकता है? जो नियम मैंने बनाया, सृष्टि से पूछता हूं जिसमें तू रहता है, कुछ बदल सकता है उसमें तू कुछ? और खुद सोचता है मुझे सब मालूम है। कंपेयर करना है तो परमेश्वर से करो, then you will stay broken. हालेलुया। टूटे रहना चाहते हो तो अपने आप को परमेश्वर से तुलना करो। नहीं पास्टर, वो तो हो नहीं सकता ना। हाँ, हो नहीं सकता, then you will stay broken forever. I thank God for that. हालेलुया। मुझे रहना है उस स्थान में, मुझे रहना है उस स्थान में जहां टूटा हृदय मेरा हमेशा रहेगा, ताकि उसको पसंद आओ। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है टूटे हृदय को वो कभी तुच्छ नहीं मानता। He will never despise। इसका मतलब हर बार जाऊंगा उसके पास टूटे हृदय से, वो बोलेगा I cannot ignore you। हालेलुया। बाकी सब वर्शिप कर रहे, बट व्हेन यू आर वर्शिपिंग विद अ ब्रोकन हार्ट, आई कैन नॉट इग्नोर यू। शायद किसी और के लिए नहीं आऊंगा, लेकिन तेरे एक व्यक्ति के लिए जो टूटे हृदय से आराधना कर रहा है, उसके लिए मैं मेरी प्रसन्नता लेके आऊंगा। हालेलुया। लॉर्ड ब्रेक मी। You will not ask, Lord bless me. You will say, God, break me. Because me broken, I will be a blessing to many people. Hallelujah. What does it mean? जब देखा ईसाया ने परमेश्वर कैसा है, तो परमेश्वर के मुंह से एक वचन आया, बोला किसको भेजूं, कौन जाएगा? When you know you're broken, you are ready to do anything for God. ये नहीं बोला मैं अशुद्ध हूं, मैं कैसे जा सकता हूं। नहीं, तुझे कौन देख रहा है? तुझे कौन बोला तुझे देखने, अपने आप को देखने के लिए? तुझे किसने बोला कि अशुद्ध चीजों को मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता? हालेलुया। जिसको मैंने शुद्ध कहा है, कौन उसे अशुद्ध कहेगा? तू खुद भी कहेगा तो नहीं मानेगा परमेश्वर। आई नो हु यू आर, आई नो व्हाट आई हैव मेड यू। मैंने खुद तुझे क्या बोलते, आटा बना के भट्टी में डाल के राइट रोटी बनाया। तुझे नहीं मालूम कि तुझे मैंने क्या बनाया है? तू अपने आप के बारे में मुझे बोलता है जिसने बनाया। डोंट ट्राई टू टेल हिम व्हाट ही हैज मेड। बोलता है मैंने तुझे बनाया, नहीं मैं अशुद्ध। कौन बोला तुझे? बस तो अपने आप को मेरे हाथ में दे दे। मैं पूछ रहा हूं किसको भेजूं, किसको इस्तेमाल कर? लॉर्ड यूज मी, सेंड मी। If you have to be broken, there needs to be a complete surrender to God. Hallelujah. A complete surrender to God. परमेश्वर मुझे भेज। क्यों भेज? मैंने वो डिग्री किया। क्यों भेज? मैं हर संडे चर्च को जाता हूं। क्यों भेज? मुझे ज्ञान है रेवलेशन से वापिस रिटर्न जेनेसिस तक। सबको जेनेसिस से रेवलेशन तक मालूम है, मुझे रेवलेशन से जेनेसिस तक। We give reasons for God.
क्यों मुझे इस्तेमाल? किसको इस्तेमाल करूँ? तू टूटने के लिए रेडी है तो इस्तेमाल करो। तू अपने आप को मेरे सामने शुद्ध करेगा, ये बताएगा संपूर्ण हो, ये कंप्लीट, बोला यू आर नॉट यूजलेस, तुझे शो पीस में रखो। बट इफ यू आर रेडी टू बी ब्रोकन, देन आई विल स्टार्ट यूजिंग यू। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो टू बी ब्रोकन? कोई पूछा आज संडे क्या क्या मिला? ब्लेसिंग नहीं मिला। टुडे वी वर ब्रोकन। पता है many people don't come to church if God starts breaking them. They will come to church only when shame on us. It's a shame on us. He took his own body. He broke it and said, "This is for you." Romans 12, first verse. Romans 12:1. रोमियो उसका 12वां अध्याय पहला वचन। परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। पॉल, यू आर beseeching, you are begging. किस बात को याद दिला के? परमेश्वर की दया को याद दिला के। कैसी दया? जिसने स्वर्ग छोड़ के मेरे लिए अपनी जान दी, वो दया। जो तुझे मरने के लिए नहीं छोड़ा, तुझे जिंदा रखा, वो दया। तुझे कीचड़ से उठा के, डूबने से बचा के, तुझे चट्टान पे खड़ा किया, वो दया के निमित्त मैं आज तुझे विनती कर रहा हूं। क्या विनती है? अपने शरीरों को जीवित और पवित्र, brokenness is complete surrender to God. ऐसा है को पता चला क्या चल रहा है परमेश्वर के मन में? किसी को भेजना है, परमेश्वर हूं मैं यहां पे, भेज मुझे। I am not complete, but still send me. I am not skillful, but still send me. I don't have anything useful, but still send me and use me, God. Because I don't want to go in my strength. मैं अपनी ताकत में, अपने स्किल में नहीं जाना चाहता। अपनी पवित्र आत्मा से भरकर मुझे इस्तेमाल कर ले, क्योंकि मुझे पता है टूटे चीजों को तो तू इस्तेमाल करता है। मैं टूटा हूं, इसका मतलब यूजलेस नहीं है। दुनिया वालों के लिए रहेगा, घर वालों के लिए रहेगा, दोस्तों के लिए रहेगा, लेकिन उसके लिए वो ढूंढ रहा है कहां से टूटा हुआ है। The one who is broken and lost, I have come in search of them. Hallelujah. ताकि उनको इस्तेमाल मैं कर सकूं। फर्स्ट थिंग, टूटना मेरे लिए ये मतलब हो जाता है अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देना। मैं शुद्ध बन के दूंगा नहीं, मैं अच्छा बन के परमेश्वर को नहीं। अगर परमेश्वर सिर्फ होशियार लोगों को चुन के इस्तेमाल करता ना, तो कभी मछुआरों को नहीं चुनता। He has chosen the foolish things of the world. तुमको लगता है मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूं? You are the right candidate for God. Hallelujah.
क्या करना पर समझ में नहीं आता, गलतियां होते रहते, यू आर द राइट कैंडिडेट। आमेन, हालेलुया। इन बेवकूफ लोगों को उठा के जो ज्ञानी बोलते हैं ना, उनको नीचे दिखा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मुझे अच्छा बनना नहीं है ताकि परमेश्वर इस्तेमाल करे, मुझे टूटा हुआ रहना है ताकि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे। आमेन, हालेलुया। फर्स्ट थिंग, ओके, आई एम गोइंग लिटिल फास्ट। दूसरी बात, 2 Corinthians 3rd chapter 5th verse। नहीं कि हम अपने आप से योग्य हैं, हम्म, अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकते यस, हैं। पर हम्म, हमारी योग्यता हम्म। परमेश्वर की ओर से, हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हम अपने आप में कुछ नहीं है, बल्कि हमारी योग्यता कहां से आती है? परमेश्वर की ओर से आती है, राइट? एक बार इंग्लिश में, देन विल गो क्विकली। नाउ दैट वी आर नॉट सफिशिएंट ऑफ आवरसेल्फ टू थिंक एनीथिंग एज ऑफ आवरसेल्फ। हम अपने आप के बारे में ये नहीं सोच सकते, मैं ये हूं, मैं वो हूं। नहीं नहीं, नहीं सोच सकते हम लोग। पॉल जो 13 न्यू टेस्टामेंट के बुक्स लिखा, वो कह रहा है मैं अपने आप के बारे में कुछ हूं ये सोच नहीं सकता। हालेलुया, ओके, कंटिन्यू। बट आवर सफिशिएंसी इज फ्रॉम गॉड। मेरे में बहुत कुछ रहेगा, लेकिन हर बार जब खड़ा होऊंगा, परमेश्वर तुझ पे डिपेंड रहूंगा। हालेलुया। घर में महीने भर का राशन है, लेकिन फिर भी प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर आज की रोटी है, आज मुझे दे दे। My sufficiency is not from what I have. My sufficiency is always in looking to God. Amen. इसका मतलब क्या है? एक और वचन पढ़ेंगे, then I will tell you. Matthew 16:24। मत्ती 16 और 24। मैथ्यू 16:24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, क्या करे? क्या करे? सिर्फ इनकार नहीं। हाँ, इनकार करने में सब फेमस है, बाकी सबको इनकार करेंगे। अपने आप को, अपने आप को इनकार करना है। यीशु मसीह को इनकार नहीं करना है, लोगों को इनकार नहीं करना है, अपने आप को इनकार करना है। और किसका क्रूज? जीसस, आई लव यू सो मच, आई वांट टू कैरी योर क्रॉस। पहला अपना तो उठा ले बाबा। Deny yourself, carry your own cross, and then follow me. Second thing, टूटना क्या होगा? अपने आप का इनकार। हालेलुया। जब ये सीखेंगे, बहुत आखिरी में, ये स्टार्टिंग में, राइट, बहुत आखिरी में लाके बोलेंगे, लॉर्ड नॉट माई विल बट योर्स बी डन। ये बोलने के लिए क्या बोलते हैं? आई थिंक वेरी फ्यू पीपल हैव गॉट अप टू दैट पॉइंट,
जहां वो बोले परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूर्ण हो। जब मैं अपने आप को इनकार करूंगा, मुझसे कोई हाथ नहीं मिलाया, मुझे कोई विश नहीं किया, मुझसे कोई बात नहीं किया, मेरे और भी नहीं देखा किसी ने, कितना अपने आप को देखते हो। I want to deny myself. कभी कभी लगता है मुझे इनविजिबल बना दे परमेश्वर, चलेगा, सिर्फ आवाज आने दे उतना। मिस्टर इंडिया नहीं बनने। I have to deny myself. I have to learn to deny myself. परमेश्वर ने मैं जो चाहता हूं वो नहीं चाहिए, बोले तो चाहिए, आज डोमिनोज चाहिए तो चाहिए। Learn to deny yourself. मैं हमेशा बोलता हूं हाउ टू लर्न सेल्फ डिनायल। वो चीजें करो जो तुमको पसंद नहीं, जो चीज तुम्हें खाने में पसंद नहीं है वो खाओ, जिससे आपको बात नहीं करना है ना उसको फोन लगाओ, जो चाहते हो मेरे सामने कभी ना आए, तुम उनके सामने करो। I am denying myself. दम लगता है, आसान नहीं है। चाहते हो परमेश्वर इस्तेमाल करे, इस्तेमाल कर परमेश्वर, लेकिन ये सब तू टूटेगा नहीं तो तुझे इस्तेमाल नहीं करेगा। हालेलुया। तुझे टूटना है तो अपने आप को नकारना पड़ेगा। हालेलुया। अपने आप को नकारना पड़ेगा। Not as I want, not the way I want. जैसे मैं चाह रहा था वैसे नहीं हुआ परमेश्वर। Good thing you did not happen. क्योंकि जैसे तू चाह रहा था वो हुआ नहीं, अब जो मैं चाहता हूँ वो होगा। Amen. Hallelujah. 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 Listen to me, something I will tell you. God loves you so much. Yes, amen. God loves us so much. Yes. He did not give us many things. He rejected that prayer. He did not fulfill that desire. And He kept me broken so that I can be close to Him. Amen. Amen. Hallelujah. परमेश्वर वो नौकरी क्यों नहीं दे रहा है? वो नौकरी देगा, तू मेरे से दूर जाएगा। वो नौकरी से ज्यादा तू मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। Hallelujah. You are more important to me than the blessing that I can add in your life. Hallelujah. And I don't want to lose you by giving a blessing that will take you away from me. Amen. परमेश्वर चंगा क्यों नहीं किया? नहीं, चंगाई में तू मुझे ढूंढ रहा है तो मैं मेरे साथ रहेगा तू, क्योंकि जिस दिन चंगा करूंगा तू मुझे छोड़ देगा। I am glad I am in this situation. टूटे हुए स्थान में हूं परमेश्वर, धन्यवाद देता हूं क्योंकि ये टूटापन मुझे तेरे साथ रखेगा। एक सच्चा इंसिडेंट बोलता हूं, बेनी ने दिया था टेस्टिमनी। एक बहुत रिच लेडी ने कॉल करके बोला, आई एम पैरालाइज्ड, लकवा हो गया मुझे, आई कैन नॉट मूव आउट, बहुत तकलीफ है, आके प्रेयर करके जाओ। आई विल प्रे एवरीथिंग यू वांट।
तेरे लिए चार्टर बुक करो, गाड़ी का अरेंज करो, आके प्रे करो। मैंने बोला आई प्रे एंड टेल। वो प्रार्थना करते करते बहुत टाइम हो गया, somewhere around 3 to 4 months हो गए। Then she stopped calling me. तब उसका ध्यान महीने से ऊपर निकल के परमेश्वर की ओर चला गया। परमेश्वर तू हीलर है, जो मेरा लक्ष्य उधर लगी है उसको। तो हर दिन प्रार्थना करने लगी, हर दिन परमेश्वर से बात करने लगी। 4 महीने के बाद यीशु मसीह आया उसको मिलने के लिए। कुछ नहीं बोला उसको हील करना, कुछ नहीं बोला, बट दे हैड अ वंडरफुल फेलोशिप विद ईच अदर। उस लेडी ने कहा, यीशु मसीह अगर मैं ऐसे ही रहूं जिंदगी भर, क्या तू रोज मिलने आएगा मुझे? उसने कॉल करके बैनिंग करो, तेरा आने का जरूरत आई डोंट वांट टू बी। नहीं तू ये नहीं देगा तो मैं चर्च को नहीं। तेरे आशीष से ज्यादा तू इम्पोर्टेंट है परमेश्वर के लिए। तेरी चंगाई से ज्यादा तू इम्पोर्टेंट है परमेश्वर के लिए। Ready to stay in that broken state. मैं फिर से कहता हूँ, that place of brokenness is not weakness. जो टूटा हुआ स्थान है ना, वो क्या बोलते हैं, बलहीन नहीं है। That is the most strongest position you can ever have. क्यों? टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर खड़ा रहता है, वो कभी उसको तुच्छ नहीं मानता। I have to be served to somebody else, then I have to deny myself. नहीं, मेरा यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, मुझे पसंद नहीं, तेरा पसंद किसको चाहिए? तो अपने आप को तोड़ना चाहता है, अपने आप को नकारना चाहता है, तो अपनी पसंद ही मत रख, उसकी पसंद को ढूंढते जा। परमेश्वर तुझे क्या पसंद है? That becomes a living sacrifice. वो है जीवित बलिदान। आज मेरा जीवित है, लेकिन मैं उसका गला कस रहा हूं। मेरी इच्छा जीवित है, मैं उसका गला काट रहा हूं। It becomes something that is alive. I am sacrificing it. That is a living sacrifice. Hallelujah. Hallelujah. What is brokenness to me? It is my self-denial. मैं अपने आप को नकार सकता हूँ। क्यों? मेरे लिए परमेश्वर के साथ रहना और परमेश्वर के लिए मैं उसके साथ रहना सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। सेल्फ-डिनायल। जब यीशु मसीह को पकड़ने आए, साइमन ने क्या किया? आप निशाना भी करेक्ट नहीं था, काटना उसको गला था, काम काट कर। अब यीशु मसीह एक बात बोलता है साइमन से, डोंट फाइट। अगर मैं चाहूं, I can call 12 legions of angels to fight for me. अगर मैं चाहूं तो 12 legions, मैं बोलता हूँ 1 legion is minimum 6,000, तो 6,000 angels मैं बुला सकता हूँ,
Jaya sir ने 12 into 6. 72,000 angels I can pray. और बताए एक एंजल कितने लोगों को मार सकता है? 1,85,000. 1,85,000. One angel can kill. क्यों डरते हो यार? यीशु मसीह ने कहा, if I want, I can call now. Peter, you don't have to fight for me. मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ, क्यों? परमेश्वर है, उसको करने दो ना अपना डिफेंस को। नहीं मेरे पर Are you trying to protect your own God? The one who created you? You cannot. अगर आपको लगता है उसमें ताकत नहीं अपने आप को बचाने के लिए तो करो, लेकिन मुझे पता है मेरा परमेश्वर खुद को बचा, इसीलिए मैं उसके हाथ में देता हूँ ताकि मुझे भी बचाने रहो। If I want, I can pray now, but I have chosen not to pray. हालेलुया। Hallelujah. कितने लोग बीमारी आते ही बोलते हैं गॉड हील मी, हील मी। लेकिन क्या पूछा है परमेश्वर से, परमेश्वर इसका उद्देश्य क्या है? अगर तू चाहता है इसको रहने दे तो रहने दे। हालेलुया। इसीलिए तेरा टाइम हो गया, मरने वाला है तू, घर क्लीन कर ले। नहीं मरने वाला है तू, सेट योर हाउस। नहीं 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 नहीं, मुझे हील कर, मुझे हील कर। तब मर गया होता तो इस्राएल का हिस्ट्री अलग होता। जिंदा रह के तूने दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया, मर गया होता तो परमेश्वर इस्राएल को संभाल ले। हालेलुया। जब मुझे समझ में आती है तो मौत भी मेरे लिए एडवांटेज बन सकती है। हालेलुया। क्यों इतना जल्दी गया तुझे नहीं मालूम, परमेश्वर। बेटर ही डाइड बिफोर ही डिनाइड जीसस। Hallelujah. अंडरस्टैंडिंग? यस। आमीन। कुछ समझ में आ रहा है? I have to learn to deny myself. अपने आप को नकारना मुझे सीखना है। अगर टूटना है मुझे, कब टूटेंगे? जब अपने आप को नकारेंगे। Psalms 20 and verse 7. तीसरी भजन संहिता उसका 20वां अध्याय 7वां वचन। भजन संहिता 20वां अध्याय 7वां वचन। किसी को रथों को और किसी को घोड़े का भरोसा है। किसी को रथों पर भरोसा है, किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर, परंतु हम वो लोग हैं जो परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेते हैं। some trust in chariots and some in the swords, but we will trust in the name of the Lord. Amen. Hallelujah. आमीन। टूटना का मतलब तीसरी बात मैं बताता हूँ, परमेश्वर उस व्यक्ति को तोड़ेगा जिसका भरोसा सिर्फ और सिर्फ उस पर रहेगा। युद्ध में जा रहा हूँ, रथ मेरे हाथ में है, स्वॉर्ड मेरे हाथ में है, लेकिन फिर भी मुझे रथ पर भरोसा नहीं है, मेरे हाथ में खड़ी हुई तलवार पर मुझे भरोसा नहीं है। मेरी जीत कहाँ पे आएगी? परमेश्वर से मेरी जीत आएगी। नहीं तुझे नहीं मालूम ये स्वॉर्ड कहाँ से लाया, इम्पोर्टेड है। नहीं, तेरा स्वॉर्ड तुझे जीत नहीं दिलाता, तेरी ताकत तुझे जीत नहीं दिलाती,
तेरा ज्ञान तुझे सक्सेस नहीं देगा, तेरा इन्फ्लुएंस तुझे ऊपर नहीं खड़ा करेगा, जब तक कि तू अपने आप को तोड़ के पूरा भरोसा परमेश्वर पर डालेगा और बोलेगा, लॉर्ड आई एम गोइंग टू डिपेंड ओनली ऑन यू। हालेलुया। 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 कौन टूटेगा? जिसका भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर रहेगा। बाकी सब है, लेकिन फिर भी मुझे उस पर भरोसा नहीं है। मेरा LIC है, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है, सब कुछ है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, लेकिन मेरा भरोसा नहीं है उस पर। मेरा भरोसा किस पे है? I will depend only on my intelligence. Hallelujah. क्या उस स्तर पर आ सकते हैं हम? क्या हम बोलेंगे परमेश्वर, my dependency is easy. Total dependency is easy. आधा मदा नहीं, आधा इधर करेंगे, आधा इधर करेंगे। God says, I want total dependence. मैं पूछ रहा था परमेश्वर इसको कैसे एक्सप्लेन करूं? सिंपल सी बात है, जिसको तैरना नहीं आता है, दम से जाके खड़ा हुआ है, बोला मैं पानी में कूद रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। तैरना नहीं आता है मुझे, लेकिन कॉन्फिडेंस है, मैं कूद रहा हूं। I don't know to swim, but I am ready to jump because you have said jump. Yes. Hallelujah. मेरा वो डिपेंडेंस करेगा ये क्वेश्चन नहीं आते को, मेरे को आता कि नहीं, या फिर am I able, am I eligible, am I capable? हमारे साथ आप able निकाल दो। केवल I'm totally dependent on what He can do for me. Because my God is a God who can use nothing. जो कुछ भी नहीं है, उसको मेरा परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। जब वो कुछ भी नहीं है, जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, तो वो सब कुछ बना देगा। He will turn your nothingness into everything. Hallelujah. When you trust in Him. Amen. Hallelujah. One more verse we'll read and then I'll finish it. Job 13, 15 verse. योग उसका 13वां अध्याय 15वां वचन। योग उसका 13वां अध्याय और 15वां वचन। वह मुझे घात करेगा, वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। हालेलुया। एक बार इंग्लिश में पढ़ लेता है। Though he slay me, Though he slays me, yet will I trust in him. yet will I trust in Him. हालेलुया। Even though, अगर मैं उसको सिंपल भाषा में कहूँ, वो मुझे मार भी डाले, फिर भी मेरा भरोसा सिर्फ उस पर रहेगा। हालेलुया। आमेन। मैं कहता हूँ, ये अगर हम इस स्तर पर निकले, तो परमेश्वर कहता है तुझे इस्तेमाल करने मैं खुद को भी नहीं रोक सकता। Hallelujah. I cannot stop myself from using you when you are ready to be broken in such manner. अगर तू अपने आप को इस तरह तोड़ने के लिए अपने आप को तैयार करेगा, तो मैं अपने आप को तुझे इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। हालेलुया। आमेन। कई बार होता है हम अपने आप में इतने खड़े हो गए ना, झुकना नहीं चाहते, हम दीन नहीं बनना चाहते, नम्र नहीं बनना चाहते, अपने पे भरोसा करते हैं, अपने ज्ञान पर भरोसा करते हैं, अपनी सोच पर हम भरोसा करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो जब कुछ बोले, आप कुछ उनको उल्टा बोलो तो भड़क जाते। क्यों? उनको सिर्फ मेरी सोच करेक्ट है, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता करेक्ट।
I cannot use that because you are not ready to break. हमारा हृदय नहीं टूटता जब हम किसी को देखते हैं तकलीफ में. God says, how can I use you? हमारी सोच नहीं बदलती जब परमेश्वर हमें सोच बदलने के लिए कह रहा है. God says, how can I use you? तू अपने आप को नकार नहीं सकता. तुझे कैसे इस्तेमाल करूं? These are people with dignity. जो कहना चाहते हैं हमेशा उनको करने दो इस्तेमाल. हमको सुपरवाइज करने के लिए बुलाया. हमको अधिकारी बनाया. He who wants to be first in the kingdom of God should be the last. Yes. और वो सबकी सेवा करना चाहिए. You want to be highest, then serve everybody. एक बहुत अच्छी बात कहा परमेश्वर ने. I'll read it for you. In the kingdom of God, ध्यान से सुनो. परमेश्वर के राज्य में डिग्निटी किसको मिलता है पता है? परमेश्वर के राज्य क्या बोलते हैं डिग्निटी को? आइडेंटिटी में डिग्निटी. सम्मान. ओके राइट. सम्मान किसको मिलता है पता है परमेश्वर के राज्य में? इंग्लिश में अच्छा लगता है. Holy Spirit said, you know, who will be called as dignified in the presence of God? तो बहुत कुछ सोचा. मैंने भी बहुत एडवाइस दिया. बोला ये बहुत सिंपल है. Those who dig their knee deep in the presence of God, they will be dignified. Hallelujah. Dig your knee in the presence of God. You will be dignified in the heaven. Hallelujah. You will be the most dignified person in heaven. एक और स्टेटमेंट है. I loved it when he was speaking. सब कुछ नहीं बोलूँगा. Heaven recognizes. ध्यान से सुनो. Heaven recognizes a bowed head, a humble heart, and bended knees. Heaven recognizes a bowed head, a humble heart, and a bended knees. हिंदी में बोल सकते हैं. स्वर्ग उनको पहचानेगा जिनका चेहरा झुका हुआ है, दिल नम्र है, हृदय नम्र है और घुटने मोड़े हुए हैं. Heaven recognizes such people. ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग खड़ा होता है वेलकम करने के लिए. हालेलुया. अगर टूटने के लिए तैयार हो, परमेश्वर कहता है मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा. फिर से कहता हूं मैं, इफ यू आर नॉट ब्रोकन यू आर नॉट सिनिंग. तो कोई पाप नहीं कर रहा अगर तो अपने आप को तोड़ना नहीं चाहता. नहीं, मैं हमेशा सीधा खड़ा होना चाहता हूं. यू कैन. यू विल गो टू हेवन. आमेन. लेकिन वहां अगर क्राउड नहीं मिल रहा है तो फिर बोलना नहीं. The reward of being humble, being surrendered, being self-denial, and totally depending upon God, to be broken by God. जैसे योग ने कहा, even though he says, इसका मतलब वो बोल रहा है परमेश्वर मेरे साथ कुछ भी कर, तू मार भी डाल मुझे, मेरा भरोसा सिर्फ तेरे पर है. Say this is ultimate. इसीलिए शायद परमेश्वर शैतान को सामने बुला के बोला चैलेंज है तुझे. चैलेंज है, जो चाहे कर इसको.
ये मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं फिर से कहता हूँ, कैन गॉड गिव दैट टेस्टिमनी फॉर अस? मेरा अल्टीमेट गोल वही रहेगा, परमेश्वर ऐसी गवाही शैतान के सामने तू लेना, इसके साथ तू कुछ नहीं कर, ये मुझे छोड़ेगा नहीं। मेरा भरोसा इसके कभी कम नहीं होगा, मेरे लिए इसमें प्यार कभी कम नहीं होगा, इसका ज़ील मेरे लिए कभी कम नहीं होगा। ये टुकड़ा 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 कर दे इसको, लेकिन हर एक टुकड़ा मेरी आराधना करना है, हर एक टुकड़ा राइट मेरी सेवा करना है। Are we ready to do that? Hallelujah. I encourage you.